بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کو اس مہینے سے انتہائی مناسبت ہے۔ ویسے ساری ہی کتابیں اللہ نے رمضان میں اتاری ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان کو نازل ہوئے۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کی کتابیں 6 رمضان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور 12 رمضان کو عطا ہوئی۔ تمام ہی نبیوں کی کتابیں اللہ نے رمضان ہی میں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے قرآن مقدس کو بھی اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر رمضان کی ایک مقدس رات جس کو کہا جاتا ہے شب قدر، شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ متعین تاریخ پر ہم 27 نہیں کہہ سکتے ہیں، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 اور 29 تک کے اقوال ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمومی طور پر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ہاں، ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف ثابت ہے جس میں آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 20ویں رمضان کی صبح میں نکلے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ ان 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے وہ ابھی آخری عشرہ بھی اعتکاف کر لیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھ کو شب قدر آخری عشرے میں بتائی۔ یہ بتانے کے لیے نکلے ہی تھے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آخری عشرے میں کون سی رات ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تھا۔ لیکن جب آپ نکلے اپنے اعتقاد سے باہر تو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان دونوں کو صلح کروانے لگے اور ان دونوں کو سمجھانے لگے اس جھگڑے کی بنیاد پر وہ کون سی رات تھی اللہ نے دماغ سے بھلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بس اب اتنا سن لو کہ شب قدر کو مجھے آخری عشرے میں بتایا گیا، اس لیے جو لوگ میرے ساتھ 20 دن سے اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لیں۔ مجھے اللہ نے رات بھی بتائی تھی لیکن فلاں اور فلاں کے جھگڑے کی بنیاد پر اللہ نے میرے دماغ سے اس کو اٹھا لیا۔ اور قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر ہم کوئی حکم دے کر پھر اس کو مٹا دیں یا بھلا دیں تو میرے پیغمبر غم نہ کیجیے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اگر میں کوئی حکم دوں اور پھر اس کو مٹا دوں یا بھلا دوں تو غم نہ کیجیے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ لیکن ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہوئی کہ اللہ نے بتانے کے باوجود اس کو اٹھا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا اتنی بدترین چیز ہے کہ اللہ کے نبی کے ذہن سے شب قدر کو اٹھا دیا گیا۔ جھگڑا بہت بدترین چیز ہے۔ اللہ کے نزدیک امت کے وہ آدمی بدترین ہیں جو ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نزدیک مبغوث ترین انسان یعنی جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ تعالی یوم القیامت الد الخصم، قیامت کے دن اللہ جن لوگوں پر محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا ان میں ایک جھگڑنے والا بھی ہے۔
जो जरा जरा सी बातों में झगड़ा करता रहता है, बीवी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, फला से झगड़ा, फला से झगड़ा, ये बदतरीन किस्म का आदमी है। फरमाया कि ऐसे इंसान की तरफ अल्लाह निगाहें शफकत नहीं फरमाएंगे। उन्हीं में एक आदमी वो है जो यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, दो आदमियों के दरमियान झगड़ा कराने के लिए बातों को झूठ मूठ नकल किया करता है, जिसको चुगलखोर कहा जाता है। उसकी तरफ भी अल्लाह निगाह शफकत नहीं फरमाएंगे, बल्कि उसके लिए तो वईद ये है कि जब तक वो सच्चे दिल से तौबा नहीं करता है, शबे कदर में भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो अल्लाह की निगाह में बड़ा मबगूज है। इसी तरह वो इंसान जिसकी तरफ अल्लाह निगाह शफकत नहीं करेगा, जिससे उसका पड़ोसी मुतमईन न हो, अपने पड़ोसी को जिसने सताया, इसी तरह वो इंसान अल्लाह उसकी तरफ निगाह शफकत नहीं करेगा कि जो इंसान शराब का आदी बन चुका है, अल्लाह निगाह शफकत नहीं फरमाएंगे। इसी तरह वो इंसान जिसने अपने पैंट को, अपने पजामे को, अपने कुर्ते को टखनों से नीचे लटकाया और शरीयत का मसला जानने के बावजूद वो ये कहने लगा इसमें क्या हो गया, वो अल्लाह के तकब्बुर की चादर को खींच रहा है। अल्लाह कहता है मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं। इसी तरह वो इंसान कि जिसने बुढ़ापे के बावजूद जिना में कदम रखा। इमाम नववी फरमाते हैं कि जिना तो वैसे भी बदतरीन चीज है, लेकिन बुढ़ा होकर जब जिना करता है तो अल्लाह को गुस्सा उस पर इसलिए ज्यादा आता है कि एक तो बुढ़ापा है, कब्र में जाने की तैयारियों के अय्याम है, पांव जवाब दे चुके हैं, ताकत खत्म होने की तरफ जा रही है, और फिर तू ये गुनाह कर रहा है, इस पर मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। फरमाया ये इंसान जब बुढ़ापे में इस काम को सोचता है तो अल्लाह ताला उस पर बहुत गुस्सा करता है, निगाह शफकत नहीं फरमाएंगे। इसी तरह वो इंसान जो अपने पड़ोस की बीवी के साथ जिना करता है, जिना तो बदतरीन चीज है, लेकिन पड़ोस के साथ करने पर अल्लाह को इसलिए बहुत गुस्सा आता है कि पड़ोसी ने तुझ पर एतमाद किया था, जिसने भरोसा किया उसी का घर तूने मारा। आज बहुत सारे लोग बेचारे कि मेरा पड़ोसी है, जरा देखभाल रखना मेरे घर की, कहीं जा रहा है अपने घर वालों को हवाले करके, अपनी बीवी बच्चों को हवाले करके वो आदमी उसी के घर को मारता है अल्लाह के वहां। इसलिए ये मबगूज तरीन इंसान बना मेरे। और इसी तरह वो आदमी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जो जवान है और माँ बाप बूढ़े हैं और इस जवान ने अपने माँ बाप की तौहीन की, जानने के बावजूद कि मेरे माँ बाप के हुकूक हैं, जानने के बावजूद इसने तौहीन की, अल्लाह कयामत के दिन इस पर निगाह शफकत नहीं फरमाए। अबू दाऊद शरीफ की मुतव्वर रिवायत है। मेरे जवानों इस रिवायत को बहुत गौर से सुनो। अल्लाह के हबीब के दरबार में सहाबी आए और अपने बेटे के बाब में कुछ अशआर पढ़े, बेटे की नाफरमानी बगावत पर बात में कुछ अशआर पढ़े और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी बीमारी पर मैं बीमार था, इसकी आंख दर्द करती थी तो मेरी आंख में दर्द हो जाता था, ये बीमारी में करवट बदलता था तो मेरी नींद उड़ जाया करती थी, ये बेचैन था तो मैं बेचैन हो जाया करता था, इसकी खुशियों पर मैंने अपनी सारी जीत को कुर्बान कर दिया था, मैंने हार कबूल कर ली, लेकिन मेरा बेटा कामयाब हो जाए
اس کی تمام خوشیوں پر میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا تھا. یہ صبح گھر سے نکلتا تھا، شام واپس نہیں آتا تھا، میری بے چینی اور اضطراب رہا کرتا تھا. اس کی بے چینی کے اوپر میری موت کا میں سودا کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا. وہ صحابی اشعار پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس لیے کہ نبی کے والدین نہیں. صحابی کی ان باتوں پر حضور کو اپنے والدین یاد آ گئے. میرے بھائیوں، عجیب ہے، عجیب واقعہ ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کے دور میں ایمان لے آئے، یمن میں ہیں اور ایمان لے آئے، لیکن افسوس نبی کی زیارت نہیں ہوئی، نبی کی ملاقات نہیں ہوئی. نبی کے صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے اور حضور پر پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں آنے کو، لیکن ماں بری ہے، بستر میں پڑی ہوئی ہے، انتظام کے نظام میرے پاس نہیں ہے، نوکر کے پیسے میرے پاس نہیں ہے، باندی اور غلام کا سرمایہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کسی کو حوالے کر کے آپ کے پاس آؤں. اللہ کے حبیب، اگر آپ فرمائیں تو ماں کو چھوڑ کر میں آ جاؤں، اور آپ فرمائیں تو میں ماں کی خدمت میں رہوں. جی بے چین ہے اپنے نبی کی زیارت کو، لیکن ماں کا بھی مسئلہ ہے. نبی پیغام دے رہے ہیں، ماں کی خدمت کرو، میری زیارت میں آنے کی ضرورت نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ماں کی خدمت کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پیغام ملا تو ادھر ماں کی خدمت میں لگے، ادھر عمر کو اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے، اے عمر، کبھی یمن میں جانا ہو تو مقام قرن میں جانا، اور مقام قرن کے آدمی اویس ہے جس کا پورا بدن کوری ہے، کور والا ہے، ابرس والا ہے، اس سے میرا سلام کہنا اور اس سے میری امت کے لیے دعائیں کرانا. اللہ کا حبیب اویس کو یہ پیغام دے رہا ہے. یہاں حضرت الامام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال قائم فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ ایک سوال قائم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آقا کے ہوتے ہوئے نہیں ہوئی، اور پھر آقا ان کو آنے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ مقام صحابیت اتنا اونچا مقام ہے کہ دنیا میں نبی کے بعد بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ولی، دنیا کے سارے اولیاء، سارے ابدال، سارے قطب، سارے معین الدین چشتی، سارے عبد القادر جیلانی اور سارے کے سارے نظام الدین اولیاء، سب کے سب جمع ہو جائیں، لیکن ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ نبی پر پڑی ہے اور نبی کی نگاہ ان پر پڑی ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف حضرات محدثین نے فرمائی، اسلام کی حالت میں جس نے اپنے نبی کو دیکھا اور نبی نے ان کو دیکھا اور اسلام پر ان کی موت ہوئی، یہ صحابی کی تعریف ہے. چاہے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے نبی کو دیکھا، 5 منٹ کے لیے اپنے نبی کو دیکھا اور اس کے بعد پوری زندگی دیکھنے کا موقع نہ ملا، لیکن اس نے نبی کی حیاتی میں نبی کو دیکھا. یاد رکھو، اگر نبی کے انتقال کے بعد کسی نے نبی کی جسد اطہر کو دیکھا، وہ صحابی نہیں، حیاتی میں نبی کو دیکھا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، فرمایا جس نے نبی کو خواب میں دیکھا وہ صحابی نہیں ہے، جس نے حیات میں اپنے اسلام کے ساتھ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. علماء نے تیسری قید لگائی، فرمایا نبی کے دور میں نبی کی حیاتی میں نبی کو دیکھا ہو اور تمہاری عقل اسے تسلیم بھی کرتی ہو. اللہ کے نبی کا دور وہ دور ہے خیر القرون قرن، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ والتابعین التابعین، یہ 3 دور ہیں. 5ویں صدی میں یعنی 400 سال گزرنے کے بعد ایک انسان پیدا ہوتا ہے ہندوستان کی زمین پر
पंजाब के इलाके में जिसका नाम है बाबा रतन। ये पंजाब की जमीन पर पैदा हुआ 400 साल के बाद, और उसने दावा किया कि मैंने नबी को देखा है, बल्कि नबी को अपनी गोद में उठाया है बचपन में, और जब नबी को नबुव्वत मिली तो मैं नबी के ऊपर ईमान लाया हूँ। ये अपनी जगह पर सूफियत का दावा करता हो, लेकिन इसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए कि इंसान में किसी की उम्र इतनी नहीं हो सकती है। इस उम्मत के अंदर मेरे नबी ने इस उम्मत की जो उम्र बताई है वो मा बैन 60 व 70, 60 और 70 के बीच में बताई। और एक मर्तबा मेरा नबी ईशा की नमाज पढ़ा करके मिंबर के ऊपर बैठ गया और फरमाया, सुनो, मैंने इस वक्त ईशा की नमाज को ताखीर से पढ़ाया। कितनी ताखीर से पढ़ाई? सुलुस लैल गुजर चुका था, यानी रात का 1/3 हिस्सा गुजर चुका था, और रात का 1/3 हिस्सा गुजरने के बाद आपने ईशा की नमाज पढ़ाई और फरमाया, मेरी उम्मत पर अगर गिरानी न होती तो मैं हुक्म देता कि रात का 1/3 गुजरने के बाद ईशा की नमाज पढ़ो। इतनी ताखीर से इसलिए पढ़ी ताकि उम्मत ईशा की नमाज के बाद बकवास में मुब्तला होकर के वक्त को जाया न करे। अल्लाह के हबीब के आमाल में बड़ी हिकमत है। फरमाया, लेकिन मुझे सदमा है कि कहीं मेरी उम्मत इतनी ताखीर से नमाज न पढ़ पाए और सुस्ती की बुनियाद पर छोड़ दें, इसलिए फिर आपने थोड़ी जल्दी पढ़ाई। उसके बाद आपने एक थोड़ा सा मुख्तसर खुतबा दिया। याद रखो, मेरे नबी का मामूल रोजाना बयानों का नहीं था। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु हर जुमेरात को बयान दिया करते थे। बुखारी शरीफ में रिवायत है, लोगों ने फरमाया, हजरत आपकी बातें बड़ी अच्छी हमें लगती है, दिल पर चोट होती है, आप रोजाना क्यों बयान नहीं देते? फरमाया, यही बात हमने अपने नबी से भी कही थी कि या रसूल अल्लाह, आप रोजाना हमको इस तरह बयान दिया कीजिए। हजरत ने फरमाया, फरमाया, कहीं उकता कर तुम मुझे छोड़ न दो और मेरे अल्लाह की बातों को न छोड़ दो, इसलिए मैं रोजाना बयान नहीं दूंगा। आका का मामूल रोजाना बयान का नहीं था, ये सहाबा का भी मामूल था। हकीकत हाल ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि उम्मत के दिलों में दीन की अजमत बाकी रहे, उम्मत के दिलों में अल्लाह के नबी के कलाम की अजमत बाकी रहे। फरमाया, ईशा की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, थोड़ी देर के लिए कुछ बातें फरमाई और कभी कभी अल्लाह के नबी ने बहुत लंबा बयान दिया। इमरान इब्न हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी फजर के बाद बैठ गए और अल्लाह था, और जिस वक्त अल्लाह था उस वक्त आपके साथ क्या था, अल्लाह के नबी ने इस मजमून को छेड़ दिया। सबसे पहले जब अल्लाह जब था तो उसने सबसे पहले किसको बनाया? इस मजमून को मेरे नबी ने छेड़ दिया। फरमाया, जो मजमून छेड़ दिया मेरे नबी ने तो फजर के बाद शुरू हुआ तो जोहर की अजान हो गई, जोहर की नमाज पढ़ के फिर मजमून छेड़ दिया तो असर हो गई, फिर मजमून छेड़ दिया मगरिब हो गई। फरमाया, गुरूद होता जा रहा है, अगर तुम्हारे खाने की फिक्र न होती तो रात भी गुजर जाती। कभी ऐसा भी हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह की तरफ से गुरूद होता जाता था तो फिर आप उसको बयान करते ही चले जाते थे, मज़ामीन को खोलते ही चले जाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईशा की नमाज ताखीर से पढ़ाई। कितनी ताखीर फरमाई थी? उमर आए मकान पर, फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे भी सो गए, औरतें भी सो गई, यानी मस्जिद ही में सो गए, बहुत देर हो गई है, आका चलिए नमाज पढ़ा दीजिए। आप आए, ईशा की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद आपने मुख्तसर खुतबा दिया, और उस मुख्तसर खुतबे के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद जरूरतों की बातें जो इतनी अहम बयान फरमाई, उसमें एक बात ये भी बयान फरमाई कि इस वक्त इस जमीन पर जितने लोग मौजूद हैं 100 साल पर खत्म हो जाएंगे। आका ने उस वक्त फरमाया, इस वक्त इस सरजमीन पर जितने लोग हैं 100 साल पर सब मर जाएंगे। मालूम होता है कि अगर सहाबा के दौर में किसी को लंबी उम्र मिली भी तो 100 साल से ज्यादा नहीं होगी। हुजूर ने फरमा दिया
100 साल पर खत्म हो जाएंगे। अगर ये पंजाब में पैदा होने वाला बाबा रतन हुजूर के दौर में था तो नबी की इस हदीस पर 100 साल पर खत्म हो जाना चाहिए था। 400 साल के बाद ये दावा कर रहा है, इसका दावा मुस्तरद होगा, रद्द होगा, इसकी बात को नहीं माना जाएगा। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके रद्द में आज से 800 साल पहले एक किताब लिखी, कसरुल वतन अला रद्द बाबा रतन। बाबा रतन के रद्द में जो दुनिया का एक बुत है और गलत दावा कर रहा है। सहाबी अल्लाह के नबी के दौर में, अल्लाह के नबी की हयाती में अपने ईमान के साथ जिसने नबी को देखा वो है सहाबी, चाहे सोहबत 1 मिनट की हो, चाहे सोहबत 5 मिनट की हो, बशर्ते के सहाबी की मौत ईमान के ऊपर हुई हो। ये शर्त है। अगर बाद में वो मुर्तद हो गए तो फिर उसको सहाबी नहीं कहा जाएगा। शर्त है कि उसकी मौत ईमान पर हुई हो। दुनिया में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से बढ़कर किसी का मकाम नहीं हो सकता। सबसे अफजल सहाबा किराम है, सबसे अफजल सहाबा किराम है। और क्यों न हो जो बराह रास्त शागिर्द हैं और कल्बे मोहम्मदी से ईमान को लेने वाले, कल्बे मोहम्मदी से इल्म को लेने वाले, मिशकात नबुव्वत से बराह रास्त नूर को लेने वाले, क्यों न होंगे वो अफजल और आला करीम जिनसे मुताल्लिक कुरान में अल्लाह ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं उनसे राजी हो गया, वो मुझसे राजी हो गए। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। फरमाया अल्लाह से डरना मेरे सहाबा के बाद में, जिन्होंने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रात सहाबा चाहे छोटे ही सहाबी क्यों ना हो, चंद मिनट ही की सोहबत क्यों न मिली हो, लेकिन वो अफजल तरीन है। इस वक्त मकाम सहाबा का मौका नहीं है, वरना मैं अज़मत सहाबा पर कुछ बातें आपको सुनाता, इसलिए कि आजकल फितनों के दौर में नत नई जमातें पैदा हो रही है जो आए दिन एक नया दीन निकाल रही है, आए दिन एक नया फितना निकाल रही है। ऐसे वक्त में हमें अपने दिलों में सहाबा की अजमत को बिठाना बहुत जरूरी है। लोग कह रहे हैं गुनाह कर लिए सहाबा ने, हमने कहा तू तेरे नफ्स से गुनाह कर रहा है, सहाबा को अल्लाह ने करवाए, सहाबा को गुनाह अल्लाह ने करवाए। और क्यों करवाए अल्लाह ने? ताकि दीन की तकमील हो सहाबा की। जो काम शाने नबुव्वत के खिलाफ नहीं थे, जो काम नबुव्वत की शान के खिलाफ नहीं थे, वो तो अल्लाह ने नबी से करवाए। मसलन खड़े होकर पानी पीना, ये शान नबुव्वत के खिलाफ नहीं था। अल्लाह के नबी ने कभी खड़े होकर पानी पी लिया और उम्मत को बताया जरूरत पड़े तो तुम खड़े होकर पानी पी सकते हो। नबी ने एक मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया, उम्मत को बताया कभी जरूरत पड़ जाए तुम्हें पांव का कोई मसला हो गया, बैठना बिल्कुल मुश्किल है तुम्हारे लिए, खड़े होकर पेशाब कर सकते हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर तशरीफ लाए, इशारा फरमाया ठहर जाओ मैं अभी आ रहा हूँ, मेरी वुजू नहीं है, जाकर के वुजू करके आए और सहाबे किराम को नमाज पढ़ाई। निसियान मुमकिन था, नबी से हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुसल्ले पर, फरमाया ठहर जाओ मैं अभी मकान जाकर के आ रहा हूँ, पानी के कतरे टपक रहे, गुस्ल करके आका तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई और फरमाया मुझ पर गुस्ल का फरीजा बाकी था और मैं भूल गया था और मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ गया था। मालूम होता है निसियान नबुव्वत के मनाफी नहीं है, सौ हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हत्ता कि आपने 2 की 3 भी कभी पढ़ाई, आपने 3 की 4 भी कभी पढ़ा दी, आपने 4 की 5 भी कभी पढ़ा दी है। यही नहीं, लैलतुल तारीफ एक सफर का वाकया है, आखिरी पहर चल रहा है रात का, सहाबा फरमाने लगे बहुत थक गए या रसूलल्लाह, हम आराम कर लेते, मदीना करीब है, बहुत जल्द सुबह पहुंच जाएंगे। फरमाया आखिरी पहर की नींद मीठी होती है, कहीं ऐसा न हो कि सो गए और आंख लग गई, उठ न पाए फजर की नमाज का मसला। लेकिन अपने नबी की अब सहाबा की बड़ी रियायत फरमाया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बहुत इसरार हुआ, फरमाया अच्छी बात है चलो सो जाओ, लेकिन उठाएगा कौन?
उठाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? बिलाल ने फरमाया मैं लेता हूँ या रसूलल्लाह, अना चीजों को मैं उठा दूंगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब सो गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अजीब मामला, हजरत बिलाल ने ऊंट का कजावा जो बैठने का होता है उसको नीचे उतारा और सुबह सादिक की तरफ निगाह लगाए बैठ गए कि जैसे ही सुबह सादिक होगी मैं सबको उठा दूंगा। लेकिन सब सो गए, बिलाल भी थके ही थे, बिलाल की भी आंख लग गई। हुआ ये कि आफ्ताब शुरू हो गया। सिद्दीक अकबर उठे और एक सहाबी उठे, हजरत उमर उठे तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर। हजरत उमर के तेवर बदल गए कि फजर की नमाज कदा हो चुकी है, अब क्या होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी सोए हुए, फजर की नमाज कदा हो चुकी है सबकी। लेकिन मसला ये है कि जब नबी सोए हो तो उनको उठाया न जाए, मुमकिन है वही उतर रही है। इसलिए मसला ये है कि नबी सोए हो तो उनको उठाया न जाए। कैसे उठाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हजरत उमर ने जोर जोर से अल्लाहु अकबर बोलना शुरू कर दिया। हजरत की आंख खुली, फरमाया उमर क्या बात है? फरमाया अल्लाह आफ्ताब शुरू हो चुका है, फजर की नमाज हमारी कदा हो चुकी है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला ज़ैर, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, गम न करो, फिक्र न करो, चलो यहाँ से आगे चलेंगे, पानी है वहां पर जाकर के वुजू वगैरह करके फिर आगे चल करके नमाज पढ़ेंगे। वहां पहुंचे, नमाज पढ़ी। सवाल ये होता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजर की नमाज कज़ा हो गई। हजरात मुहद्दिसीन फरमाते हैं कज़ा नहीं की, अल्लाह ने करवाई। इसलिए अल्लाह ने करवाई ताकि उम्मत को कज़ा के मसाइल मालूम हो। अगर नबी की नमाज कभी कज़ा न होती तो उम्मत को कज़ा के मसाइल कैसे मालूम होते? हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह सारे मुहद्दिसीन का जवाब मेरे सर के ऊपर, लेकिन एक हिकमत के तौर पर जवाब मेरे दिल पर भी आता है। हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे दिल पर इसका जवाब ये आ रहा है कि असल में बिलाल ने रात को यूं कहा था मैं उठाऊंगा और इंशाअल्लाह नहीं बोले थे। फरमाया इंशाअल्लाह नहीं बोले थे, अल्लाह को छोड़ करके अपनी जात पर एतमाद किया था तो अल्लाह ने सुना रखा। हजरत शेख फरमाते हैं उसके बाद फरमाया इतना ही बड़ा अमल क्यों न हो, अल्लाह को भूल कर न किया करो, हमेशा अल्लाह को याद रखा करो। बहरहाल निस्यान सहव और भूल का हो जाना ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के मनाफी नहीं है। आपसे सहव भी हुआ, आपसे 2 की 3 भी पड़ी गई, ये सारे मसाइल हुए। लेकिन कुछ मसाइल वो थे जो शरीयत को मुकम्मल भी करना था, प्रैक्टिकली तौर पर भी उम्मत को बताना था, और दूसरी तरफ शान नबूवत के भी खिलाफ था। नबी से वो काम नहीं हो सकते थे। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का इंतखाब फरमाया और वो काम सहाबा से करवा कर शरीयत को प्रैक्टिकली तौर पर उम्मत के सामने मुकम्मल किया। मसलन अगर कोई जिना कर ले तो इस सूरत में उसकी सजा आयद की जाएगी, लेकिन ये सजा के आयद करने का क्या तरीका होगा, उसके क्या मसाइल होंगे, अब ये नबी से तो नहीं हो सकता था। अल्लाह जल्ल शानू ने कुछ सहाबा को इसके लिए तैयार कर लिया। हजरत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरबार नबुव्वत में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कसूर हो गया, मैंने ये काम कर लिया। अल्लाह के हबीब टालना चाहते हैं इसलिए कि बहुत बड़ी सजा है इसके ऊपर, पत्थर मारकर अभी खत्म किया जाएगा, इसकी छोटी छोटी औलाद है क्या करेगी। अल्लाह के नबी टालना चाहते हैं, कह रहे हैं लाल तकब्बल का, शायद तूने बोसा दे दिया होगा, शायद तूने हाथ पकड़ लिया होगा, आगे कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन माइज़ बार बार आकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैं साफ कह रहा हूं मुझसे ये काम हुआ है, आप मुझे पास कर दीजिए। बताओ मेरे भाइयों, अगर माइज़ उस वक्त अल्लाह के नबी के टालने पर चले जाते और अल्लाह से तौबा कर लेते, अल्लाह माफ कर देता, यानी माफ कर देता, यकीनन माफ कर देता। लेकिन बार बार माइज़ आ रहे हैं और नबी से कह रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ही शरीयत को मुकम्मल करवाना चाहता था। कबीले गामदिया की एक औरत आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह कसूर हो गया है और इसी का अमल है मेरे पे, आप मुझे पाक कर दीजिए। किसी को मालूम नहीं था। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आका ने फरमाया बच्चा पैदा हो जाए तब आना। 6 महीने गुजर गए, बच्चा पैदा हुआ, किसी को याद नहीं।
وہ अपना बच्चा लेकर आई, या रसूल अल्लाह आपने वादा किया था ना कि बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चा कौन उस औरत को भेज रहा था नबी के पास? क्या उस औरत को ये पता नहीं था कि अभी मुझे पत्थर मारकर खत्म किया जाएगा? बच्चा लेकर आई, या रसूल अल्लाह तो मुझे पाक कर दीजिए, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? फरमाया बच्चा दूध पीता हो जाए तब आना, अब बच्चा रोटी खाता हो जाए तब आना। जब बच्चा बड़ा हुआ 1-1.5 साल का, उसके हाथ में रोटी पकड़ाई है और लेकर आई, या रसूलल्लाह अब तो मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते इस बच्चे को कौन ले रहा है? सहाबी ने ले लिया, फरमाया इसको रजम कर दो, जो शरीयत का हुक्म था रजम किया गया। रजम के मौके पर खालिद इब्न वलीद की जबान से लानत का लफ्ज निकला। अल्लाह के हबीब ने खालिद को फरमाया तूने बहुत बुरा कहा है। इस औरत ने वो तौबा की है कि अगर मदीना के सारे जहन्नम में जाने वालों पर तकसीम की जाए तो सारे मदीना के जहन्नमी जन्नत में चले जाए। इसने वो तौबा। आखिर गालिदिया को किसने मजबूर किया था हुजूर के पास आने पर? मालिक को किसने मजबूर किया था हुजूर के पास आने पर? हकीकत हाल ये है हम अपने नफ्स से गुनाह कर रहे हैं, वो गुनाह नहीं करते थे। अल्लाह की तरफ से 1-2 अमल करवाए गए ताकि शरीयत मुतहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकली तौर पर मुकम्मल हो जाए। जो मलामत करते हैं सहाबा पर वो खुद मलामत के काबिल है। हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगी पाक व साफ है। अल्लाह की तरफ से उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम का परवाना मिला है। बहरहाल मैं तो ये कह रहा था कि इतना ऊंचा मकाम हजरत उवैस करनी को अल्लाह के हबीब ने क्यों महरूम कर दिया? क्यों नहीं आने दिया अपने पास? क्यों उवैस को कह दिया कि ना आओ, अपने माँ की खिदमत में लगे रहो? इतने ऊंचे मकाम से नबी ने महरूम कर दिया उवैस करनी को। सहाबा का मकाम कितना ऊंचा है। हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब देते हैं, फरमाया असल में अल्लाह के नबी जितनी बात इरशाद फरमाते थे आका उसको करके बताते। आपने जितनी बातें हमारी तरफ तकरीरें नहीं जहारते थे कि हम कहें कुछ और करें कुछ। आका का मिजाज नहीं, जो कहते थे वो करके बताते। अगर आपने उम्मत को ये तालीम दी कि सखावत करो तुम्हें इस पर सवाब मिलेगा, तो आका का आलम यह है कि दुनिया से रुखसत हुए हैं तो आपके पास कुछ नहीं है, वो सखावत करके उम्मत को बताया। अगर आपने ये फरमाया कि सुकून के साथ नमाज पढ़ो तो आपने वो नमाज पढ़ के बताया कि आपके पांव मुबारक वरम कर गए। अगर आपने ये बताया कि रोजा रखो इस तरह कि अल्लाह राजी हो जाए तो आपने वो रोजे रखे कि कभी कभी हफ्ते तक न शहरी की न इफ्तारी, 100 में विशाल आपने रखे। उम्मत को तो मना किया गया लेकिन आपने 100 में विशाल रखे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते थे वो करके बताते थे। आपने वालिदैन के फजाइल बहुत बयान फरमाए, बहुत बयान किए वालिदैन के फजाइल। इरशाद फरमाया माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक सहाबी के पूछने पर फरमाया माँ की खिदमत करो, फिर फरमाया माँ की खिदमत करो, फिर फरमाया माँ की खिदमत करो। चौथी मर्तबा में फरमाया बाप की खिदमत करो। पहले 3 मर्तबा में माँ का नाम इसलिए लिया कि माँ 3 मुसीबतें झीलती है जिसमें माँ अकेली है, बाप शरीक नहीं है। हाफिज इब्न हजर एक बड़े मुहद्दिस में बुखारी शरीफ की शरह में लिखते हैं माँ 3 मुसीबतें झीलती है जिसमें बाप शरीक नहीं है। हमल की मुसीबत, उसमें माँ अकेली है, बाप शरीक नहीं। विलादत की मुसीबत, माँ अकेली है, बाप शरीक नहीं। अपने खून को दूध बनाकर पिलाने की मुसीबत, माँ अकेली है, बाप शरीक नहीं। आका ने इन तीनों की रियायत करते हुए पहले 3 मरतबा माँ का नाम, और चौथी मरतबा में तालीम का मसला आता है, तरबियत का मसला आता है जो जिम्मेदारी बाप की है, इसलिए आका ने चौथी मरतबा में बाप का नाम लिया। फरमाया आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के फजाइल बेशुमार बयान फरमाए, लेकिन आका के वालिदैन नहीं थे कि आप अपने इन फरमूदात को अमल करके बताते। माँ बाप ही नहीं थे कि आप ये खिदमत करके बताते। आप दुनिया में आए तो वालिद साहब रुखसत हो चुके थे और आपकी 4 साल की उम्र हुई और वालिदा रुखसत हो चुकी थी, तो वालिदैन तो आपके थे ही नहीं कि आप खिदमत करके बताते।
इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूंकि आपके वालिदैन नहीं थे कि आप खिदमत करके बताते, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी को मकामे सहाबियत से महरूम करके उम्मत को ये तालीम दी, माँ बाप का मकाम इतना ऊंचा है कि मकाम सहाबियत से महरूम हो सकता है, लेकिन माँ की खिदमत को नहीं छोड़ सकता। माँ की अजमत बताना मकसूद था, माँ बाप की अजमत बताना मकसूद था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैस कर, यही वजह है जवानों याद रखो, जिसके माँ बाप नाराज हो, बड़ी से बड़ी रात में भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसके कारोबार में बरकत नहीं होती। इसीलिए इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है या उलूमुद्दीन के अंदर, फरमाया अगर रोजी में बरकत चाहते हो, जिंदगी में बरकत चाहते हो, तो काम करो। क्या काम? माँ बाप हयात हैं तो उनको राजी कर लो, और अगर इंतकाल कर चुके हैं, मर चुके हैं नाराजगी के आलम में, तो उनके लिए इसाले सवाब खूब करो ताकि वो राजी हो जाए। जो वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके राजी करने का तरीका यह है कि उनके लिए कसरत से इसाले सवाब किया जाए ताकि वालिदैन राजी हो जाए। बहरहाल मैं तो कुछ और बात कहने को जा रहा था। कुरान करीम को रमजान मुबारक से बड़ी मुनासिबत है। अल्लाह ने सारी किताबों को रमजान ही में नाजिल फरमाया। हमारी इस कुरान मुकद्दस को भी हक़ तआला शानहू ने शब कद्र के अंदर नाजिल फरमाया, लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, ये पहला नुज़ूल है। और दूसरा नुज़ूल आसमान दुनिया से जमीन पर वो 23 साल में हस्बे जरूरत कुरान करीम का होता रहा। अल्लाह के हबीब ने 20 दिन के एहतिकाफ पर इरशाद फरमाया, मेरे साथ जो एहतिकाफ कर रहे हैं वो आखिरी अशरे का भी एहतिकाफ कर लें। शब कदर आखिरी रात, आखिरी अशरे के अंदर है, लेकिन वो रात भी बताई गई थी। अलबत्ता दो आदमियों की झगड़ने से अल्लाह ने उसकी तायीन उठा ली, शब कदर नहीं उठाई, उसकी तायीन को उठा लिया। मालूम होता है झगड़ा इतना बदतरीन है। और वो कौन दो सहाबी थे? हजरत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। काब इब्न मालिक के पैसे बाकी थे अब्दुल्लाह इब्न हजरत के पास, और अब्दुल्लाह इब्न हजरत से नहीं बन पा रहे थे। इस मसले में दोनों बुजुर्ग उलझ गए और जरा आवाज बुलंद हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनको समझाने लगे। उसी में लैलतुल कद्र की तायीन उठा ली गई, लेकिन इसमें भी हमारे लिए खैर है। वो खैर ये है कि अगर लैलतुल कद्र को मुतय्यन कर दिया जाता, उस रात को मुतय्यन कर दिया जाता, तो बंदा उसी रात को जागता पूरी रमजान सोता रहता। दूसरी एक वजह ये भी है कि अगर रात की तायीन हो जाती और वो रात अगर कहीं नींद की वजह से, गफलत की वजह से गुजर जाती, तो साल भर इसका सदमा रहता कि अल्लाह अकबर, मेरी रात तो मेरे हाथों से निकल गई, मुझे इसका फायदा तो हुआ ही नहीं। इसलिए अब जब रात की तायीन नहीं है तो 21 को नहीं जाग सका तो सोचेगा कोई जरूरी थोड़ा ही है कि 21 में हो, मुमकिन है 23 को होगी, मुमकिन है 25 को होगी, मुमकिन है 27। इसी तरह वो अपने दिल को तसल्ली देते हुए कुछ न कुछ रातें जाग लेगा। बहरहाल इसमें भी, और फिर अल्लाह के देने की दो शानें हैं। एक शान तो अल्लाह, जैसे माँ बाप के देने की भी दो शान है। एक तो अपने बच्चे को चॉकलेट बताते हैं, बेटा सामने आता है उसके हाथ में दे दी, और एक दूसरा तरीक ये है कि बेटे को करीब बुलाया और चॉकलेट बताई। अब जब करीब आया तो पीछे छुपा दी, फिर इधर छुपा दी, फिर बच्चा इधर आया तो इधर छुपा दी, यहाँ तक के बच्चों को चारों तरफ घुमाते हैं। आखिर में जब बच्चे को नहीं मिलती है तो बिना फिर बच्चा रो पड़ता है। जैसे ही रोता है माँ उसको चूम लिया करती है, बोसा दे दिया करती है, और फिर मोहब्बत से अपने हाथों से खिलाती है। अल्लाह ने एक तो डायरेक्ट दिया और यूं फरमाया, हर नमाज के बाद मैं तुम्हारी एक दुआ को जरूर कबूल करूंगा। ये तो सीधे चॉकलेट बता करके हमें दे दिया। और एक तरीका अल्लाह ने ये अपनाया कि हक़ तआला शानहू ने इन रातों को छुपा करके, इस जुमा के दिन की साथ को छुपा करके जरा हमें बुला करके रुलाया। अभी रोए, फिर रोए,
پھر روئے, رات بھر روتے رہے. جب بندہ روتا رہا تو اللہ نے اپنی محبت کی آگوش میں لے کر کے اس کو چاکلیٹ عنایت فرما دیتے ہیں, اس کی دعا کو قبول کر لیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے دینے کے دو طریقے ہیں. اس لیے شب قدر کے چھپانے میں بھی اللہ کی مصلحتیں ہیں اور امت کے لیے اس میں بڑا خیر ہے. قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کا تعلق اس رمضان المبارک سے ہے, اسی لیے خاص طور پر تراویح کو رکھا گیا تاکہ تراویح کے بہانے سے بندہ قرآن کریم کو سنے اور اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر اس قرآن کی لذت کو محسوس کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان کی راتوں میں قیام میں یعنی تراویح میں اس قرآن کو سن کر بشاشت کے ساتھ کھڑا رہے گا, اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تراویح کی ایک عظیم شان فضیلت ہے. تھوڑا ہی تو وقت ہمارا گزرتا ہے, ہمارے اکابر کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, کیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے, ویسے تو حضرت کا معمول تھا رات بھر اور دن بھر میں ایک قرآن ختم کرنے کا, لیکن ایک مرتبہ حضرت کے سامنے ایک آیت آ گئی, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن اللہ کہے گا, اے مجرموں میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ, تم گندے ہو, نکلو یہاں سے. رات میں یہ آیت حضرت کے ذہن پر آ گئی. حضرت معمولی آدمی نہیں ہے ابو حنیفہ. حضرت کی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں, سیوطی نے لکھا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے چلتے چلتے امام صاحب کو ایک زور سے تھپڑ مارا. حضرت نے فرمایا بدلہ لے سکتا ہوں لیکن نہیں لوں گا. فرمایا شرطا اور پولیس کو بتا سکتا ہوں لیکن نہیں بتاؤں گا. فرمایا حاکم وقت کو شکایت کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. فرمایا رات میں اٹھ کر سحرگاہی اور تہجد میں بد دعا کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. بلکہ اگلا جملہ, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, اللہ معافی کا وہ دل ہم کو بھی نصیب فرمائے. حضرت نے فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ کو بخش دیا, معاف کر دیا, تو میں تجھے تلاش کروں گا اور تیری سفارش کر کے میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. تھپڑ مارنے والے کو حضرت کہہ رہے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا, بخش دیا, تو میں تجھے تلاش کروں گا پھر, اور تجھے تلاش کر کے تیری سفارش کر کے میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا. اللہ وہ دل, وہ معافی والا قلب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ہمارے قلوب کے اندر معافی کے جذبات ختم ہو چکے ہیں. اب تعالیٰ ہمیں معافی کے جذبات نصیب فرمائے اور امت کے لیے خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی امام صاحب ہیں, ایک مرتبہ جا رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے تو بچوں سے کہا دیکھو یہاں کیچڑ ہے, پاؤں پھسلنے نہ پائے, گر جاؤ تو چوٹ آ جائے گی. تو ایک بچہ بڑا ذہین تھا, اس نے جواب دیا, حضرت آپ ہماری فکر نہ فرمائیں, اپنی فکر فرمائیں. اگر ہم گر گئے تو ایک کے پاؤں کو چوٹ آئے گی, اور اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی. اشارہ فرمایا کسی مسئلے میں آپ کا پاؤں پھسل گیا تو پوری امت پھسل جائے گی. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب فضائل, اور اللہ نے وہ علم دیا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث آپ کے سبق میں بیٹھا کرتا ہے, ابو یوسف جیسا محدث آپ کے سبق میں بیٹھا کرتا ہے, امام محمد ابن حسن شیبانی جیسا محدث آپ کے سبق میں بیٹھا کرتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے امام صاحب سے سوال کر لیا کہ حضرت میدان کارزار ہے اور آمنے سامنے دشمنوں کے تیر چل رہے ہیں, اور میرا دشمن میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا اللہ اس کو مارو, لیکن اس نے ہمارے مسلمان کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور اس کو ڈھال بنا رہا ہے حفاظت کے لیے. اب اگر میں دشمن کو مارتا ہوں تو تیر بچے کو لگتا ہے, میں ماروں یا نہ ماروں؟ حضرت نے فرمایا بسم اللہ بول کر مارو, بچے کو لگے گا تو وہ مسلمان کا بچہ ہے, شہید ہو جائے گا, اور دشمن کو لگے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس آدمی نے پلٹ کر دوسرا سوال کیا, فرمایا حضرت دشمن کو مارنے کا ارادہ ہے, لیکن دشمن نے میرے نبی کو یوں پکڑ کے رکھا ہے اور نبی کو ڈھال بنا کر کے رکھا ہے, اب میں تیر ماروں یا نہ ماروں؟ اس لیے کہ اب اگر تیر ماروں گا تو وہ نبی کو لگے گا, میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا جب نبی موجود ہیں تو مجھے مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے, وہی نبی سے پوچھ لینا تو ماروں یا نہ ماروں. حضرت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے, تیرا سوال بیکار ہے.
यहीं से उलमा ने मसला निकाला कि ऐसे सवाल तो पूछा करो जो कभी जिंदगी में पेश आने वाले हो, ऐसे सवाल न पूछो जो सिर्फ अपने इल्म के लिए हो, अपनी शान बताने के लिए हो, अपना मर्तबा बताने के लिए हो, अपने बड़ेपन को बताने के। ऐसे सवालों से क्या फायदा। अल्लाह के नबी ने ऐसे सवालों से पनाह मांगी है, जिसको कहा जाता है कीलो काल व कसरत सवाल। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। ये हजरत इमाम अबू हनीफा रात एक आयत आगे वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, इस आयत को पढ़ते पढ़ते ईशा के बाद से सुबह का वक्त हो गया। किसी ने फरमाया हजरत इतना रोए, फरमाया अल्लाह कहीं मुजरिमीन में मेरा भी शुमार न फरमा दे। ये हमारे अकादिर से जो डरा करते थे, इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पढ़ने वालों की शान ये है वजीलत कुलूबुहुम, कुरान पढ़ते वक्त दिल रोना चाहिए, रोना ना आवे, रोने की सूरत बनाओ कम से कम। हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ की शरह में फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह को कुरान की तिलावत पर रोने वाला पसंद है। आगे अगला जुमला फरमाया रोना नहीं आता है तो रोना न आने पर ही रोया करो कि अल्लाह ने अजीम नेमत से महरूम कर दिया। रोना नहीं आता इसी पर रोया करो। अल्लाह ताला हम तमाम को इस मुबारक महीने में तिलावत कुरान करने की, कुरान पढ़ने की और तरावीह में कुरान करीम को सुनने की मोहब्बत के साथ, शौक के साथ अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा वफ़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल अमल व जन्निबना अल फ़वाहिश वल मआसी वल ख़ताया वल ज़लल। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह कबूलियत दुआ का वक्त है। मेरे मालिक मेरे नबी ने फरमाया है कि टाइम के लिए दो खुशियाँ होती है, एक इफ्तारी के मौके पर और एक क़यामत के दिन। ए अल्लाह इफ्तारी के मौके पर हम सबको माफ फरमा कर खुशी अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे लिए माफी के फैसले फरमा दे, हमारे रोजों को कबूल फरमा ले, हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले, हमारी तिलावत को कबूल फरमा ले, हमारी तरावीह को कबूल फरमा ले। लायक नहीं है तेरे दरबार में पेश करने के, गंदी इबादतें हैं, लेकिन मालिक तेरे दरबार में बहाने के तौर पर पेश कर रहे। अल्लाह आप बहाना बनाकर ही कबूल फरमा लीजिए, बहाना बनाकर ही कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, मकरूज़ों को कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा, बेकसूर कैद बंद है रिहाई नसीब फरमा, गलत मुकद्दमात में है नजात अता फरमा। अल्लाह सबको आफियत की जिंदगी नसीब फरमा, सबको आफियत की जिंदगी नसीब फरमा, सबको आफियत की जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह मुहलिक बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा, कैंसर से हिफाजत फरमा, एड्स से हिफाजत फरमा, ब्रेन हेमरेज से हिफाजत फरमा, एरिया रगड़ने वाली बीमारियों से हिफाजत फरमा। दूसरों के मोहताज बन जाए मालिक, ऐसी बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन असातिज़ा अगर बक़ैद हयात हैं तो उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह शिफाए दाइमा नसीब फरमा, सेहत और आफियत अता फरमा। अल्लाह उनके साए को हम पर ताजेर कायम फरमा, और अगर तेरे प्यारे हो चुके हैं तो उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी करवत करवत मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह इस महीने में जहाँ तू हजारों जिंदों को अपनी रहमत से मालामाल कर रहा है, कब्र में पहुंचने वालों को भी अपनी रहमतों से मालामाल फरमा दे। अल्लाह मजमे की जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा, सबकी हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी औलादों को नेक और सालेह बना, बिगड़ने से, फिसलने से, जलालत से, गुमराहियों से, गलत सोहबतों से, गलत दोस्तों से अल्लाह हमारी नस्लों की पूरी हिफाजत फरमा दे। जब तक जिलाए आबरू इज्जत और ईमान के साथ जिलाना, और जब उठाए तो अपने अपने वक्त पर हम सबको खातिमा बिल खैर नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह मदीने का पैवन बना दे हमको, मदीने का पैवन बना देना हमको, ताकि नबी की पहली निगाह हम पर पड़ जाए और हम सिफारिश से मुस्तहिक हो जाए। ऐ अल्लाह
ماں بعد الموت کی زندگیاں آسان فرما، قیامت کی ہولناکیاں آسان فرما، اور کوثر کا پانی مبارک ہاتھوں سے نصیب فرما، تیری رضا نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا رمضان میں کثرت سے جنت الفردوس کا سوال کرو، ہم آج سے جنت الفردوس کا سوال کر رہے ہیں، مولا ہم سب کو عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔